रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखरा को आज सीने में जलन की शिकायत के बाद सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां उनके कई तिब्बी मायने किए गए। चीफ मिनिस्टर के शख्सी मुआलिज डॉक्टर एमवी राव, पुल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत सागर रेड्डी और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार ने उनके मायने किए और उनका एमआरआई और एसटी स्कैन करने की तजवीज़ पेश की। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने क़ब्ल तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली की रस्म हलबरदारी की तकरीब में शिरकत की थी, जो कि राजभवन में मुनक़िद हुई। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రశేఖర గారికి కొంచెం ఛాతిలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది. వారు కొంచెం దగ్గుతో అదేవిధంగా కొంచెం ఛాతి నొప్పితో బాధపడ్డారు. నిన్న వారిని చూడడం జరిగింది ఇంట్లో. ఈరోజు పరీక్ష రమ్మన్నాము. ఇది సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం చేసే టెస్టులే. పోయిన సంవత్సరం జనవరిలో టెస్టులు చేసాము, అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు టెస్టులు చేసాము. ఇప్పటికొచ్చిన రిపోర్ట్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. ఛాతీ సిటీ స్కాన్లో కూడా బాగానే ఉంది, కొంచెం చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ తప్ప. దానికి యాంటీబయాటిక్స్ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వారు ఆల్రెడీ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. పెద్ద సమస్య లేదు, తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్య ఏమీ లేదు. సో మిగతా పరీక్ష రిపోర్ట్ అనేది రేపటికి వస్తాయి. దాని గురించి మనం పూర్తి సమాచారం రేపు ఇవ్వగలం. ప్రస్తుతానికి ఉన్న రిపోర్ట్స్ అవైలబిలిటీ ప్రకారం అంటే హార్ట్ కానివ్వండి, లంగ్స్ కానివ్వండి, లివర్ కానివ్వండి, కిడ్నీ కానీ అన్నీ బాగున్నాయి. మిగతా పూర్తి సమాచారం మనకు రేపటికల్లా వస్తుంది. మిగతా పరీక్ష రిపోర్ట్స్ ఇప్పుడు అనాలిసిస్ అవుతున్నాయి, మనకి రేపు రిపోర్ట్లు వస్తాయి. ఏమేమి టెస్టులు చేసింది సార్ ఇక్కడ? రొటీన్గా అన్ని సమస్తం జనరల్ చెకప్ లాగా అంటే యాన్యువల్ చెకప్ లాగా ప్రతి వ్యక్తికి మనం యాన్యువల్ చెకప్ చేస్తాం, మాస్ చెకప్ లాగా అన్ని చేసాం. అందులో యూరిన్ ఎగ్జామినేషను, షుగర్ పరీక్ష, కిడ్నీ పరీక్ష, లివర్ పరీక్ష, కొలెస్ట్రాల్, అదేవిధంగా బ్లడ్లో హోమోసిస్టిన్ కానివ్వండి, అదే కెరోటిడ్ డాప్లర్ అంటే మెదడుకు గుండె ద్వారా వెళ్ళే రక్తాల కెరోటిడ్ డాప్లర్ స్టడీ, ఇకోకార్డియోగ్రాము, ఈసీజీ, అల్ట్రాసౌండ్, సిటీ స్కాన్ టెస్టు, అదేవిధంగా ఇతర టెస్టులు అంటే ప్రాసెస్ సంబంధించిన టెస్టులు పిఎస్ఏ కానివ్వండి, మిగతా టెస్టులు అన్ని రొటీన్ చేసాం. ఎంఆర్ఐ టెస్ట్ చేసిందా? ఎంఆర్ఐ అవసరం రాలేదు వారికి, సిటీ స్కాన్లో బాగానే ఉంది కాబట్టి ఎంఆర్ఐ క్యాన్సిల్ చేసాం. సరే, ఊపిరితిత్తులో మంట అని అఫీషియల్గా సమాచారం వారు ఏమన్నారంటే ఊపిరితిత్తులో మంట అంటున్నారు, అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని మంట అని చెప్పారు వారు. వారికి ఏంటి చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది. ఇంతకుముందు కూడా వారికి పోయిన సంవత్సరం కూడా మీకు తెలుసు న్యూమోనియా వచ్చింది, తగ్గిపోయింది. ఈ సంవత్సరం ప్రతి శీతాకాలం కూడా ఎలర్జీ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంటాయి. సైనసైటిస్ కానివ్వండి, కొంచెం బ్రాంకైటిస్ వస్తూ ఉంటుంది. దానికి యాంటీబయాటిక్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాము. ఆల్రెడీ రోజు కొంత రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఎక్కడ ఉంది సార్ ఇన్ఫెక్షన్? మీరు మాస్క్ వేసుకోండి, మాస్క్ వేసుకోండి. ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ఫెక్షన్ వారికి బ్రాంకైటిస్ అంటాము, అంటే లంగ్లో శ్వాస నాళాలను అంటాము, బ్రాంకైటిస్ ఉంది. కొంచెం మైల్డ్ సైనసైటిస్లో ఉంది. जस्टिस हेमा कोहली ने जुमेरात को तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया। उन्हें जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान की जगह गुज़श्ता हफ्ते ही रियासत का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने उन्हें हलफ दिलाया। तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनकी काबीना के रुफ़क़ा, हाईकोर्ट के जजेस और वकला के अलावा सरकारी अहदेदारों की महदूद तादाद शरीक थी। जस्टिस हेमा कोहली दिल्ली हाईकोर्ट की जज थी। Hema Kohli having been appointed Chief Justice of High Court, Chief Justice of the High Court for the state of Telangana, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Done?
रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो तेलंगाना को कोविड-19 वैक्सीन की जायद मकदार सरबराह करे। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेंद्र ने कहा कि चूंकि ये वैक्सीन हैदराबाद में तैयार हो रही है, उसे ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि रियासत में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी मश्क के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर्षवर्धन ने तमाम रियासतों के वज़राए सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूसरी मश्क के लिए जरूरी इंतजाम करने की खास हिदायत दी। हाँ राजेंद्र जी, सर हमारे पास पहले का जो ड्राई रन था सक्सेसफुली कर चुका है और कल जो होने वाला ड्राई रन हमारा सारे जिलों के अंदर ड्राई रन होने के लिए तैयार है साहब। हमारा पास एक ही थोड़ा डिफ़िकल्टी है, हमारा 14 ज़िले के अंदर सॉफ्टवेयर का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ज़रा सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर्स से हम रेगुलरली बात कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग क्या है साहब, आप जानते हैं हैदराबाद बड़ा शहर है। आज जो मंत्री जी ने जो सूचना दिया था, ग्राम पंचायती का जो सिब्बंदी है और म्यूनसिपालिटी का जो सिब्बंदी है, हमारा हेल्थ वर्कर के साथ उन लोगों को भी वैक्सीन दिए तो अच्छा बोल के हमारा सूचना है सर। थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू राजेंद्र जी। नमस्कार। नितिन भाई गुजरात, नितिन भाई। हाँ जी सर। चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने बंदलागुड़े में सहारा हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन सिद्दीकी, डॉक्टर फजल सिद्दीकी ने रंजीत रेड्डी, बदंगापेट के मेयर महेंद्र गौड़, डिप्टी मेयर राजेंद्र रेड्डी और दूसरे मेहमानों की गुलपोशी की और उनका खैर मकदम किया। मैं डॉक्टर फजल सिद्दीकी, MS ऑफ्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर विश्वेश इस DNP मेडिसिन। हमारा ये जो सेटअप है सहारा हॉस्पिटल जो हमने सन सिटी में अभी एस्टैब्लिश किया है, ये हमारा पहला हॉस्पिटल है जो तेलंगाना स्टेट में हमने एस्टैब्लिश किया है। इससे पहले हमारे चेन ऑफ हॉस्पिटल्स थे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। वी हैड अ ग्रुप कॉल्ड एज हयात हॉस्पिटल के 2 ब्रांचेस ऑलरेडी औरंगाबाद में हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, उसके अंदर एक अभी रनिंग है। ये हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करने का मेन मकसद हमारा ये है कि इसके थ्रू हम मेनली मिडिल क्लास जो होती है लोकेलिटी और जो लोग होते हैं उनको एक अफोर्डेबल रेट के ऊपर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी दे सके। हमारे यहाँ पे द मेन एम जो हमने रखा है हमारे हॉस्पिटल का वो है कि इस एरिया में 24 घंटे हम लोग इमरजेंसी फैसिलिटी विथ 10 बेडेड फुल्ली इक्विप्ड ICU, a fully equipped operation theatre and a dental setup, physiotherapy, rehabilitation setup and in future हमारा ये भी है कि हम यहाँ पे ophthalmic setup डालें। अब हम अपने तरफ से जितने कम रेट्स हो सके, जितना अफोर्डेबल हो सके, उतनी अच्छी फैसिलिटी अच्छे रेट्स में बेस्ट फैसिलिटी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब ये आपका है, आपके ऊपर है कि आप लोग हमको इसके अंदर सौभाग्य करें ताकि आप लोग यहाँ पे आए और इस फैसिलिटी का बेस्ट यूज और बेस्ट अवेल इस फैसिलिटी को कर सके। हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब ने यहाँ पे किया। इनॉग्रेशन में हम बहुत ही ज्यादा उनके आभारी हैं कि वो अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के हमारे पास आए। इसी तरह मेरी आपसे ये अपील है कि आप भी हमारे हॉस्पिटल में आइए और हमारी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करिए, उसको एक बार आके देखिए ताकि आपको भी हम बेस्ट केयर दे सके और सारी आवाम तक ये पहुंच सके कि यहाँ पे एक ऐसा भी हॉस्पिटल है इस कॉर्पोरेट दौर के अंदर जो कि विच इज नॉट मनी माइंडेड और जो लोगों को एक बेस्ट हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है एट अ वेरी लो कॉस्ट। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सर्व ह्यूमैनिटी, जो पहले भी हमारे सेटअप्स के अंदर हुआ है। आपके कितने ब्रांचेस है सर? हमारे ऑलरेडी औरंगाबाद के अंदर 2 ब्रांच हैं, जिसके अंदर एक ब्रांच अभी रनिंग है विच इज अ 40 बेडेड फुल्ली इक्विप्ड मल्टी स्पेशलिटी सेटअप। द अदर ब्रांच वाज अ 100 बेडेड सेटअप और विच आल्सो हैज अ मॉड्यूलर 2 मॉड्यूलर OTs एंड 12 बेडेड ICUs। वहां पे भी हमारा जो है एक वेबसाइट है, आप अवेल कर सकते हैं, कॉल एज hayathospital.com। वहां पे हमारी पूरी हिस्ट्री है और हमारा नाम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है इन औरंगाबाद। हम चाहते हैं कि सिमिलरली हमारा नाम तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में भी हो, यहाँ के लोगों तक भी हम पहुंचे और यहाँ पे भी हम अपनी एक बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए एट अ वेरी चीप एंड अफोर्डेबल रेट्स।
झांसी बाजार के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस ने बल्दी और आबरसंडी को दीदारों के हमरा हुसैन आलम रोड और आसपास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से आगाही हासिल की। उन्होंने उनके हल का तयक़ुन भी दिया। बहुत बरसात के टाइम रहेगा और उसकी बेटिंग वक्त ये रोजाना का सिगरेट का प्रॉब्लम आ रहा है, सिगरेट और वाटर कर देंगे। उसके बाद है सिटी पुलिस ने बड़ी आवाज के साथ साइलेंसरों से चलाई जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज किया है। पुलिस का कहना है कि इसका सबब शहर में पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। चुनाचे सुल्तान बाजार और सैफाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी बाइक्स को भारी जुर्माने किए जिनके साइलेंसर और भयानक हारन से पोल्यूशन बढ़ रहा है। इन बाइक्स में ज्यादातर रॉयल इनफील्ड की बुलेट बाइक शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने IND टुडे को बताया कि ट्रैफिक पुलिस की मुहिम आइंदा चंद हफ्ते तक जारी रहेगी। बशीरबाग फ्लाईओवर के नीचे एक ट्रेलर के फंस जाने के नतीजे में इस मसरूफ तरीन शाहराह पर जुमेरात की सुबह काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। ये ट्रेलर जिसमें एक्टिवा बाइक्स थे बेंगलुरु से हैदराबाद आ रहा था। ट्रेलर के टायरों से हवा के खराज के बाद उसे बाहर निकाला गया। मौके में टूरिज्म की तरफ से हर साल संक्रांति के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक्किद होने वाला काइट एंड स्वीट फेस्टिवल कोविड-19 वबा के चलते मंसूख कर दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बी मनोहर ने बताया कि इंसानी जिंदगियों को बचाने की खातिर फेस्टिवल को मंसूख करने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता साल इस फेस्टिवल में 10 लाख अफराद शरीक हुए थे, जिनमें कई बैरूनी सयाह शामिल हैं। GHMC के हुक्काम ने कापरा सर्कल के डी मार्ट को बंद कर दिया है। मेडिकल ऑफिसर माइत्री ने बताया कि डी मार्ट में फरोख्त होने वाली अशिया मियारी नहीं थी और इसको लेकर ग्राहकों की जानिब से मुसलसल शिकायत मिल रही थी। उन्होंने बताया कि कई अशिया के पैकेट्स में वजन का भी फर्क पाया गया। డేట్స్ తీసుకున్నారు, తీసుకుంటే దాని దీంట్లో ఓపెన్ చేయగానే అది పురుగులు స్మెల్ వచ్చిందని చెప్పి మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది. సో దాన్ని మాకు హైయర్ అఫీషియల్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే అంటే వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశారు మా హైయర్ అఫీషియల్స్కి. వాళ్ళు మమ్మల్ని సీజ్ చేయమన్నారు. సో దానికి వచ్చి నేను సీజ్ చేశాను. అంటే ఏమేమి వచ్చినాయి ఇంతకు కూడా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి కదా। तेलंगाना में सर्दी की लहर आइंदा चंद दिनों तक बरकरार रहेगी। मौके में मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद के अलावा नलगुंडा, रंगारेड्डी, यदादरी, भोंगीर, जोगुलंबा, गदवाल, मेडचल, मलकाजगिरी में कल रात बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। इसके बाद मौसम और भी ठंडा हो गया। आदिलाबाद और कामारेड्डी में दर्जे हरारत में कमी हुई है। चारशंबे की रात यहाँ दर्जे हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। Now the weather situation shows that a cyclonic circulation is over Tamil Nadu coast and neighborhood and extends up to 1.5 kilometers above mean sea level. During next 48 hours, Telangana is likely to have rain or thunder showers in some parts of the Telangana state, especially over the south districts and the central districts of Telangana. Hyderabad city generally cloudy conditions and light rain is likely to occur, and maximum temperature is around 26 to 27 degrees Celsius and minimum temperature would be around 20 degrees Celsius respectively. Then during past 24 hours minimum temperatures recorded is around 19.7 over Adilabad, and the lowest minimum temperature recorded is over Nalgonda 16 degrees Celsius. Hyderabad recorded 19.5 degrees Celsius. And if we see the rainfall during past 24 hours, Maheshwaram in Rangareddy recorded 3 centimeters, Damargidda 3 centimeters, Vaddepalli 2 centimeters, Maddur 2 centimeters, Sircilla 2 centimeters, and rest of the places have received around 1 centimeter of rainfall. Hyderabad city has recorded 1.7 mm of rainfall. If we see during after 2-3 days, dry conditions are likely to occur over the Telangana state and temperatures are likely to drop below normal, and temperatures are likely to be below normal situation.
रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स वी प्रशांत रेड्डी ने असम्बली हल्के बालकुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का सगे बुनियाद रखा और कई इफ्तिताही तकारीब में शिरकत। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद पर झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने दोनों कायदीन को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने से बाज रहने का मशवरा दिया और कहा कि TRS के कारकुन उनकी बदजुबानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मरकजी इदारे नीति आयोग ने रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली कई फ्लाई स्कीमों की तारीफ की है। ఈ భారతదేశంలో ఒక కేసీఆర్ ఒకటి ఇట్లా అనేక వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు ఇవాళ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఈ సందర్భంలో మరి తెలిసి మాట్లాడుతున్నారో తెలియక మాట్లాడుతున్నారో, బుద్ధి ఉండి మాట్లాడుతున్నారో బుద్ధి లేక మాట్లాడుతున్నారో, అవాకులు చెవాకులు ఈ ముఖ్యమంత్రి మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దయచేసి నేను వారికి ఒకటే హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాను, నిర్మాణాత్మకమైన విమర్శలు చేయండి. మా ఏమన్నా మేము ఇంకా చేయవలసిన పనులు ఉంటే చెప్పండి, ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ భగవంతుడు మాకు ఇచ్చిన శక్తి మేరకు ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ అభివృద్ధి పక్కన పెట్టి, ప్రజలకు కావాల్సిన పనుల విషయం పక్కన పెట్టి, ఉద్వేగాలు రెచ్చగొట్టి ఏదో పొందుతాం, ఏదో లాభం పొందుతాం అనుకుంటే మాత్రం ఏదో టెంపరీగా మీకు ఏమైనా లాభం వస్తే వస్తుందచ్చు, కానీ పర్మనెంట్గా మాత్రం మీ భ్రమ కలగానే మిగిలిపోతుంది. దయచేసి నేను ఈ 3-4 రోజుల నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నా, ఈ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి పనులు మీ రాష్ట్రాల్లో, మీరు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో, అది గుజరాత్ కావచ్చు, ఉత్తరప్రదేశ్ కావచ్చు, బీహార్ కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, అంటే ఈ 4-5 రాష్ట్రాలు కలిపితే భారతదేశంలో 60% భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకొని ఉంటుంది. దాన్ని మీరే పాలిస్తున్నారు, మీ పార్టీయే పాలిస్తున్నది. ఆ రాష్ట్రాల్లో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో చేస్తున్నటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని చూపించండి. लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैदराबाद के दौरे पर जुमेरात को यहां पहुंचे। राजभवन में उनसे मुलाकात करने वालों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और तंजीमों के नुमाइंदे शामिल थे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी स्पीकर से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। रियासती कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर के चुनाव के सिलसिले में बीजेपी की हिकमत अमली मुरतब करने पार्टी के सीनियर कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग के अलावा मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय, बीजेपी के कौमी तर्जुमान मुरलीधर राव, साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर के लक्ष्मण और MLC रामचंद्र वगैरह शरीक थे। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में उम्मीदवारों को आने वाले दिनों में काफ़ी रियायतें मिलने का इम्कान है। कोविड-19 की वबा के चलते क्योंकि 2020 और 21 का तालीमी साल तकरीबन ज़ाया हो गया, पढ़ते सवालात में 5-7 की जगह अब 4-5 सवालात ही आएंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के गुजरात ने बताया कि इंटर के इम्तिहानात माह अप्रैल के अवाखिर में मुनक्किद हो सकते हैं। तकरीबन 9.5 लाख उम्मीदवार शिरकत करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने रियासती हुकूमत से सिफारिश की है कि अब 18 जनवरी से जूनियर कॉलेजेस को दोबारा खोलने की इजाज़त दे। ई चालानात की रकम वसूली में तेलंगाना पुलिस मुल्क की तमाम रियासतों में सर फहरिस्त है। मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जी के लिए चालानात की 70% रकम वसूल की जा चुकी है, जबकि मुंबई और दिल्ली में सिर्फ 50% वसूली हुई है। पुलिस ने बताया कि वो चालाना से वसूल की जाने वाली रकम सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाने पर खर्च करती है और अब तक 66 करोड़ रुपए इस ज़मन में खर्च किए जा चुके हैं। 2020 में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों पर रियासत में 1,75 लाख चालानात जारी किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोविड-19 के 379 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोविड-19 के मुतासरीन की जुमला तादाद अब 2,88,779 हो गई है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में वाक़ कैपिटल हिल्स पर कब्जा करने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों को वहां से भगाने की कोशिश के दौरान 4 अफराद हलाक हो गए। कैपिटल हिल्स की पुलिस ने कहा कि रात देर गए ट्रंप के तमाम हामियों का कैपिटल हिल्स से तखलिया करवा दिया गया। महलूकीन में खातून भी शामिल है।